फैमिली एंड द नाइट्रोजन फैमिली। वो ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसी को उसका पापा कि भाई ये इसका फैमिली है, इसका फैमिली है, इसका। ओके, सो वी हैड सीन their atomic sizes, their ionic sizes. हमने देखा था how what type of bonds do they form, what is their oxidation state, how are they found in nature and all, their electronic configuration. ठीक है, what is going to be their property and what kind of a mix we are having in these three groups. To be very specific, P block elements. So now why are we specifying them as P block elements? Because their valence electron or their differentiating electron is entering the P subshell. ठीक है, कहीं पे P1 है, कहीं पे P2 है, कहीं पे P3 है, and so on. So out of these 6 groups, 3 we were studying yesterday, and the remaining 3 we are going to study in 12th standard. वैसा। अच्छा, अभी when I talk about general reactions of these elements with air, तो जब मैं with air की बात करूंगा ना बेटा, it's always going to be oxygen and the other gas. Now when I say with air, it has to be oxygen and nitrogen. Oxygen and nitrogen. तो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, be it boron, be it helium, I will represent them as E. E is element of group 13. Okay, element of group 13. बेटा दिख रहा है कि मैंने थोड़ा बड़ा लिखूं और सर फोकस से हट गया। फोकस हट गया, आई थिंक थोड़ा सा जूम्ड है इसलिए। आई विल ट्राई टू फिक्स इट, होल्ड ऑन। वापस से। इज इट ओके नाउ? यस यस। थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? तो जब मैं ग्रुप 13 की बात करूंगा, इज इट ओके और इज इट ऑटो फोकसिंग अगेन? यस 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 व्हाट? ओके रिपीट करो ना स्टार्टिंग। इट इज व्हाट? रिपीट करो। ऑटो फोकस हो रहा है क्या? रुको। एयर की बात एयर करेगा तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी आइदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ऑक्सीजन। तो अब मैं ग्रुप 13 को जनरलाइज करने वाला हूं बेटा। व्हेन आई से ग्रुप 13, आई एम टॉकिंग अबाउट बोरॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेलुरियम। नाउ लाइक आई सेड, अगर एक एक एलिमेंट को अगर पढ़ने जाएंगे डिटेल में तो अपने को जमाना हो जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल. So I am representing the element by the symbol E and reacting it with oxygen. So what kind of oxides do these elements form with oxygen? And also they will react with air at higher temperatures. Normally react nahi karega at higher temperatures to give me the oxides of the form E2O3. To give me oxides of the form E2O3. Trioxides. Also, भी निकलेगा ना, रिलीज होगा ना। These elements react with nitrogen again in the presence of heat to give me element nitride. Element nitride. ठीक है? So group 13 का कोई भी एलिमेंट मतलब बोरॉन फैमिली में से आप किसी भी एक एलिमेंट का सिंबल यहाँ लिखोगे तो ये रिएक्शन आप लिख पाओगे, सिंपल एज दैट. ओके गाइस? यस। Now is this balanced? सेकंड नहीं 2E आएगा, 2E। ये 3 होती है ना, तो ये 2 हो गया. Is it balanced now? No. नो, sir. प्रोडक्ट में 2, इधर 4। Now it is balanced. यस Yes. यस Yes. This is also balanced. Yes. यस यस ठीक है, यहाँ देखो बेटा, Al2O3, Ga2O3, B2O3, Aln, In, इस तरह से आप एलिमेंट लिख सकते हो. Yes. So 13 reacting with oxygen as well as nitrogen. Now when I talk about group 14 कार्बन वाला ग्रुप, ठीक है, when I talk Yes. about group 14 कार्बन वाला ग्रुप, it does not readily react with nitrogen, but yes, it reacts with oxygen to give you two types of oxides.
it will react with oxygen, the element of group 14 will react with oxygen in two different ways. It is going to give you a monoxide or it is going to give you a dioxide in the heat of course. सिंपल है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया बैलेंस. Yes. ठीक है. सल्फर क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, Monoxide, yes. पॉसिबल है ना बेटे. एंड इफ यू रिमेंबर, हमने कल देखा था ना बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से दिखाते हैं वो, राइट? प्लस Yes. 2 प्लस Yes. 3 -4 है ना. तो इसीलिए Yes. वो अलग अलग ऑक्साइड्स भी दिखाए. सर उधर 2 नहीं डाल सकते बैलेंस करने के लिए. इधर बेटा E plus O2 gives. E प्लस, हाँ उधर उधर हाफ लिखा है ना, इधर तो- हाफ लिख रहे हैं, तो इधर उधर 2. करके इधर 2, ऐसा बोल रहे हो? Yes. हाँ ये भी करेक्ट है. नथिंग रॉन्ग विद दिस, Yes. nothing wrong with this. Now why do we do this? Thermodynamics में any guesses? मैंने क्यों इसको हाफ लिखा और इसको सर two? हाँ 1 हो सर वो जाएगा. एक एटम का, वो एक हो एक जाएगा. Very एटम good, का very good. Who said this? Tejas, तुमने बोला ना ये? yes. Yeah. To find out the energy or to find out the amount of energy required for the oxidation for 1 mole of this element. This one symbolizes what 1 mole. That is why we are putting half over here. Otherwise उसको 2 भी करके बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है बेटा? Yes. अच्छा. So this putting 2 and 2 over here and removing the half is not wrong. It is just a concept और कुछ नहीं. ठीक है, ये लिख लिया बच्चे? Yes. Yes. Sir, wait. Done, sir. Okay. Now group 15. Group 15 कौन सा है? नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन खुद एयर में है. ठीक है. Group 15. Now group 15 जो एलिमेंट्स होते हैं ना, they form oxides of E2O3 and E2O5 types. E2O3 and E2O5 types. ठीक है. ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटाऑक्साइड्स बनाते हैं ये जो अपने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं, ये ट्राइऑक्साइड्स और पेंटाऑक्साइड्स बनाते हैं. अभी लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ फॉस्फोरस. जस्ट मैं मेरे नेटवर्क का प्रोजेक्ट कर देता हूं YouTube में. तो let us see example of phosphorus. कल मैंने आपको बताया था phosphorus exists as a tetraatomic molecule. Yes. Yes. Or So phosphorus reacts with oxygen to give me P4O6. To give me P4O6. Phosphorus also reacts with oxygen to give me P4O10. P410. अच्छा, एसिटाइन की बात करते हैं. Again, tetraatomic molecule reacting with oxygen to give me molecule AS4O6. ठीक है. bismuth is reacting with oxygen with Bi2. Now look at this. Look at these reactions. अभी आप बोलोगे कि ये E2O3 और E2O5 बोल के इधर तुमने ऐसा क्या कर दिया है? तो अगर मैं इसको reduce करूं बेटा, P2O3. Yes. isn't it the same? Yes. Isn't it the same? Yes. Yes. So Yes. 2O3 twice. it is just the molecular geometry जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इन चैप्टर्स का, ऐसे कुछ कंपाउंड्स का. ठीक है. तो ग्रुप 15 are again reacting with oxygen. So out of group 13, 14, 15, group 13 elements are reacting with oxygen as well as nitrogen to form the corresponding oxides and nitrides. Group 14 elements are reacting with only oxygen to form monoxides and dioxides, and group 15 elements are reacting with oxygen to form trioxides and pentaoxides. Okay, guys? Yes. Yes.
अच्छा, have you seen compounds like this? No. No. Have you seen compound like this? No. 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 ये तो होता है बाबा, ये क्या है? Yes, sir. ठीक है, ये याद रखना। NO5 आगे एक चीज बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये हो गए इनके ऑक्साइड्स की बात, व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, दीज ये लिख लिया था ना, मैं रब कर दिया, नहीं लिखा था। नहीं लिखा, कोई बात नहीं। Can I rub now? Yes. अच्छा, अभी when I talk about elements, अभी फॉर एग्जांपल इसकी ऑक्साइड्स की बात करता हूँ, ऑक्साइड की बात करता हूँ, जैसे B2O3 अभी हमने देखा ना, बोरिक ऑक्साइड, बोरॉन का ऑक्साइड है। फाइन, लेट्स मी टॉक अबाउट Al2O3, ठीक है, सेम एलिमेंट के अंदर, ऐसे लिखता हूँ, चलो Al2O3, है ना। देन लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन इट इज एन ऑक्साइड, राइट। सिलिका, SiO2, fine. Then let us talk about N2O5. Then इसमें से ले लो कोई फॉस्फोरस का, ले लो P2। Then बिस्मथ का ले लो, अभी जो हमने देखा था Bi2O3। दिख रहा है ना इतना यहाँ तक नीचे तक? Yes. अच्छा, ठीक है। अब जब मैं इनके कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ऑक्साइड्स की, these are the oxides which I find in group 13, 14, 15 mixed है। 13, 14, 15। ए बेटा, इतना तुमको समझ में आना चाहिए अभी मैं किस एलिमेंट के ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। Yes. Yes. Study the three groups together to compare their properties, okay? अच्छा, now when I talk about B2O3, this is acidic oxide, this is amphoteric, this is acidic, this is acidic, this is acidic, this is acidic, this is basic. If I tell you, say इधर एक बीच में डाल देते हैं J2O3, this is basic, group 13 का। चलो, मैंने लिख दिया, फाइन, मैंने बोल दिया आपको, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ टाइम से, तो मैंने बोल दिया। किसी को भी आइडिया है कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरा जो ऑक्साइड मेरे पास है, इट्स गोइंग टू बी एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक? एनी आइडिया? यस, नो, मे बी? Oxidation state. Oxidation state, not really. It's okay, it's okay. It's a new concept. That's why I'm asking. अगर किसी को पता है तो you can tell. Otherwise, any general rule you learned about it कि ऐसा होता है, वैसा होता है. So always remember, this is not a part of the chapter, but I'm just telling you for future reference. How to find out whether oxide of anything, oxide एक general term है बेटा. It can be metal oxide, it can be non-metal oxide, it can be a metal oxide. ठीक है? How to find out कि oxide अपना acidic है कि basic है? Always remember बेटा, ऑक्साइड अगर मेटल का है, ऑक्साइड अगर मेटल का है तो वो हमेशा क्या होगा? Basic. ऑक्साइड अगर नॉन मेटल का है तो हमेशा क्या होगा? Acidic. Acidic. एसिडिक। एंड ऑक्साइड अगर मेटलॉइड का है, Amphoteric. Amphoteric. इट कैन बी एसिडिक और बेसिक, मोस्टली इट इज एम्फोटेरिक, मोस्टली इट इज एम्फोटेरिक। ठीक है, सर Why so? एल्यूमिनियम मेटलॉइड नहीं है ना? Exactly, Yes. there are exceptions बेटा. Yes, aluminium is a pure metal, but aluminium का oxide is amphoteric. Aluminium का oxide is amphoteric. ये हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था, राइट?
Aluminium oxide, when reacting with acid, is it is behaving like a base, and when Base. reacting with base, it is behaving like a Acid. Acid. So amphoteric. So you should understand what the meaning of this. Amphoteric compound is that compound which, when dissolved in water, it will either behave like an acid or a base, depending what is the other compound mixed in. So if you are having a strong acid with it, it will behave like a base. And if you are having a strong base with it, it will behave like a weak acid. Okay. Yes. Yes. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया, ठीक है? Yes. अभी देखो बेटा, मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है ना, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, तो वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये बेटा, हाइड्रोक्साइड्स क्या होता है? बेस होता है कि एसिड होता है? Base. 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 होता है base. ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर, metallic oxides with water will form hydroxides. With hydroxides means basic. Now non-metal oxides with water give corresponding acids. Give corresponding acids. इसीलिए वो acidic nature का होता है. इसीलिए वो acidic nature का होता है. For example, carbon dioxide is a oxide of a metal or a non-metal? Non-metal. 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 कौन सा non-metal है ये? Carbon. Carbon. Carbon dioxide. इसको मैं हॉटर के साथ करेगा तो पता है क्या मिलेगा मेरे को? H2CO3. Very good. H2CO3 is carbonic Acid. carbonic acid. अच्छा. P2O5 plus water. H3PO3. Yes. Phosphoric acid. ठीक है? Yes. Let us talk about सर सल्फर का भी बनेगा H2SO4. क्या बोल रहा? सल्फर का भी बनेगा ना? हाँ. Bi2O3 plus H2O will give me BiOH. BiOH. Thrice. BiOH. ठीक है? बिस्मथ हाइड्रोक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड्स को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा बेटा, तो मेरे को करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिल रहा, और नॉन मेटल ऑक्साइड को जब मैं वाटर के साथ मिक्स कर रहा हूं तब मुझे करस्पॉन्डिंग एसिड मिल रहा है. That is why metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature with few exceptions. Is this clear to everyone now? Yes. Yes. तो अगली बार एंट्रेंस में या फिर नॉर्मल क्वेश्चन भी अगर किसी ने आपको पूछा, आपको किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मेरे पास ये छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट है, मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, मेरे पास ClO है, क्लोराइड ऑक्साइड है, और मेरे पास सोडियम ऑक्साइड. ठीक है? तो बस आपको ऐसा रैंडमली दे दिया, नो कंटेस्ट नथिंग. आपको बस बोल रहा है which of these is acidic and which of these is basic without any reference ऊपर नीचे. Now can you identify which of this is acidic oxide and which of this is basic oxide? Yes. Calcium oxide, metal CaO. oxide, basic. 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 Sodium oxide, metal Basic. oxide, Basic. 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 Chloride oxide, Acidic. non-metal Acidic. oxide, acidic. Simple बेटा. Yes. सर रिएक्शन को कैसे करें? अगर क्या बोल रहे हो बेटा? रिएक्शन दिया रहेगा, उसको एसिडिक और बेसिक पहचानना है. नहीं, रिएक्शन नहीं आएंगे आपको, आप रिएक्शन का टेंशन मत लो. ठीक है? बस आप ये रूल याद रखना, मेटल ऑक्साइड विथ वाटर हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड विथ वाटर एसिड. सिंपल. अभी देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी एक ऑक्साइड ही है ना, वो न्यूट्रल होता है. वो न्यूट्रल होता है. सल्फर ऑक्साइड जो होता है ना, वो न्यूट्रल होता है. सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, बट सल्फर ऑक्साइड इज न्यूट्रल. So some oxides are neutral because when they are reacted with water, they will form salt and water. They will not form hydroxide. They will not form acid. ठीक है? Yes. ये इरेज कर दो. No, no. क्यों? हाँ वो इरेज कर दो सर. ये लिख लेना, ये तुमको काम आ जाएगा बेटा. हाँ यस. चलो लिखो जल्दी.
Guys, if you need the light, let me know. Huh? I'm just trying to be nature conservant because natural light है तो light का जरूरत नहीं है. लिख लिया guys? Can I rub it? Yes. मतलब मेरा पूछने का इंतजार करते हो ना. अगर मैं पूछूं नहीं तो फिर पूरा लेक्चर में ऐसे ही खड़ा रह जाऊंगा. अच्छा, अभी group 13, 14, 15 elements with water. With water. What is water? H2O. H2. Now what happens is these compounds they do not react with water easily. ठीक है, मैं elements की बात कर रहा हूँ, इनके oxides की बात नहीं कर रहा हूँ. इनके oxides का discussion हमने अभी just खत्म किया. मैं elements की बात कर रहा हूँ, group 13, 14 and 15 elements की. So these elements they do not readily react with water except aluminium and tin, and that too at higher temperatures. Aluminium will react with water at a heated temperature, and tin will react with steam. Beta, what is the difference between water and steam? Any idea, anyone? Water is in liquid state, steam is in Liquid gaseous और state. steam Water is gaseous state. Exactly. उसका सिर्फ phase अलग. So aluminium reacts with hot water, hot boiling water to form aluminium hydroxide plus H2, hydrogen gas is released. And here tin is reacting with H2 to H2O to form tin oxide plus H2 is being released. Plus H2 is being released. ठीक है, सिर्फ इतना है. बाकी लेड जो होता है इट डज रिएक्ट विथ वाटर, बट जैसे आयरन में होता है ना, आयरन लोहा में जैसे होता है ना कि रस्ट करने के बाद एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, वैसे ही लेड के ऊपर ना लेड ऑक्साइड का लेयर बन जाता है और अंदर का लेड जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ऐसा. तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अबाउट इट. तो यहाँ पे अच्छा, कैन समवन टेल मी समथिंग अबाउट एल्यूमिनियम over here and tin over here? सर टिन ऑक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है. वेरी गुड. टिन ऑक्साइड बना रहा है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, बट दोनों ही केस में अगर आप देखोगे बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता Yes. Yes. यस. है, राइट? सर टिन को भी हीट देना पड़ेगा ना. टिन को हीट मतलब स्टीम ऑलरेडी सुपर हॉट रहता है ना बेटा, हाँ, हाँ, yes, और टेम्परेचर तो मिल ही जाएगा उसको, है ना? यस. लिख लिया? Yes. Halogens. What are halogens? क्लोरीन, क्लोरीन, 17. ब्रोमीन, आयोडीन. 17. 17th group. Can I represent them with X? X. Yes. Yes. 13 group elements. 13 group elements, they react with halogens. All elements will react with halogens. Element plus halogen will give me trihalide. Will give me trihalide. ठीक है? ये बेटा group oxidation Yes. state plus 3. Remember? Yes. Yes. Balanced है? No. 3x आएगा. Yes. No. 3x आएगा, 3x. Yes. हाँ, अभी बैलेंस है. अभी balanced है? Yes. Yes. अच्छा, 14 group के सारे elements they readily react with halogen to form tetrahalides except carbon. Carbon ना specific conditions में ही react करता है. Carbon जो है वो specific conditions में ही react करता है. Okay, and 15th group के elements, 15 group elements again they react with halogens to form pentahalides. ये देख बेटा X3, X4, X5. ये क्यों ऐसे X3, X4, X5 दिख रहा है तो 13, 14, 15 ग्रुप में? वैलेंसी.
Okay, valency, you're not wrong, but now we are in 11th and 12th, so what fancy Oxidation word we are going to use Oxidation instead of state. very good, Oxidation very state. good, very good. देखो बेटा, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, घुमा फिरा करके चीज वही है, बट कैसा है, स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया अपना, अपन थोड़े पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, तो फैंसी वर्ड यूज करने का, वैलेंसी की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरिंग बिकॉज द ग्रुप इज डिफरेंट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 in 13 group तो ट्राइहैलाइड, +4 in 14 group तो टेट्राहैलाइड, एंड +5 in 15 group तो पेंटाहैलाइड। पेंटाहेलाइड। ये तुम लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Yes. Everyone, or the only 4 students who keep listening to me, 2 girls and 2 boys. I'll name the girls. One is Sharon, other is Nikita, one is Tejas, and other is Shubham and Kedar. So these Yes. 5 students, ये 5 Answer me. And who? और कौन है भाई जिसकी आवाज मैंने कभी सुनी नहीं? नहीं, और भी हैं obviously, but these 5 people are the people who I'm going to meet, and I'm going to give them chocolates when I meet them for the first time. But because these guys kept me alive, they let me know that I am existing in the class. So group 13, 14 and 15 एलिमेंट्स का इस तरह का हाईलाइट रहेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, पहले ये लिख लो, फिर वो क्वेश्चन को डिस्कस करो। रिमेंबर मैंने NO5 करके तुमको बोला था, ऐसा देखा है क्या? Yes. मैंने बोला था याद रखना, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये लिखने के बाद लेट अस पॉन्डर अपॉन दिस क्वेश्चन। सर कार्बन का कैसा आएगा रिएक्शन? क्या बोल बेटा? कार्बन का हेलोजन के साथ कैसा आएगा? कार्बन का हेलोजन के साथ रिएक्शन इज गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यूवी लाइट वगैरह, अपने एल्केन्स वगैरह में देखा था ना हेलोजनेशन में। हां सर, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन ना, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन वगैरह Yes. देखा था ना। अभी देखो अपना PCl5 exists but NCl5 does not। इन इसका अगर मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, नाइट्रोजन does not form pentavalent halides। सर उसका ऑक्सीडेशन 3 है। पेंटावैलेंट हलाइड्स, नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हलाइड्स नहीं बताता है। तो अभी ऐसा काय को, लेट अस डिस्कस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है शुभम? 7 और फास्फोरस का 15। 15, ठीक है। 1s2 2s2 2p3 है ना? यस सर, यस यस यस। ये करेक्ट है? मैंने करेक्ट लिखा है बोर्ड पे? Yes. यस बड़ा? Yes. 3. हाँ, अच्छा। अब Yes. देखिए बेटा यहाँ पे इसके पास 2 शेल्स हैं, इसके पास 3 शेल्स हैं, दिस राइट? Yes. कितने यस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 3 अनपेड। इसके पास 3. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 3 3. दोनों का लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। स्टिल एक मेरे को पेंटावैलेंट कंपाउंड दे रहा और दूसरा मेरे को पेंटावैलेंट कंपाउंड नहीं दे रहा। द रीजन इज फास्फोरस के अंदर एक एम्प्टी 3D शेल होता है, एक एम्प्टी 3D शेल होता है, जिसकी वजह से वो अपना वैलेंसी एक्सपैंड कर सकता है। फास्फोरस क्या करेगा? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन के साथ इसने 3 बॉन्ड्स बनाया, ठीक है बेटा? यस यस Yes. अच्छा, अभी तुमको पता है क्लोरीन के पास बहुत सारा लोन पेयर होता है, यस Yes. तो आजू बाजू में और क्लोरीन है। वो क्लोरीन बोलता है ए मेरे साथ भी बॉन्ड बना ना, वो बोलता है मेरे पास बॉन्ड खाली नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तेरे साथ पेयर करने को। वो ये बोलता है मेरे पास लोन पेयर है, मैं तेरे को लोन पेयर देगा, तेरे पास जगह है क्या लेने के लिए? वो बोलेगा कि मेरे पास ना 3D एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसको देना है तो दे करके बना। तो उसका 3D जो होता है खाली ऑर्बिटल, वो अपना वो एम्प्टी ऑर्बिटल में लोन पेयर लेकर के एक्सपैंड करके PCl5 बना लेता है। बट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास D ऑर्बिटल नहीं है, तो नहीं वो है। यस जब ये क्लोरीन नाइट्रोजन के पास जाता है ऐसा,
Cl तीन बॉन्ड बनाता है। ये बोलता है तीन एक मेरे को और क्लोरीन लेना अंदर, वो बोलता है कि मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, वो बोलता है भिखारी हट, तो उसको भगा देता है। ठीक है, तो NCl5 will not exist but PCl5 will exist. Did you understand this concept? यस सर Yes. Yes. यस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. Yeah, the elements which are have below second group, second period, sorry, not group, second period के नीचे जितने एलिमेंट्स है ना, सबके पास एक्सपैंडेबल d ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ये भाई के पास लिमिटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, करके वो अपना ऑक्टेट या फिर अपना ऑर्बिटल्स एक्सपैंड नहीं कर पाता, इसलिए ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना। आई होप दिस इज क्लियर। Yes. Yes. ये लिख लें। यस सर. This question is important ना बेटा। PCl5 सर ये exists but बताओ ना, दिक्कत तो नहीं समझा तुमको शायरन? बेटा नहीं समझा तुमको? गायब ही होगी वो। Am I connected? I'm not हेलो connected? सर. अच्छा हाँ बोलो। सर ये डिक्टेट करो ना. अच्छा डिक्टेट करूं, लिखो ठीक है। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है तुमको, दैट इज द क्वेश्चन, तो वो तुम लोग अपने आप लिख लो क्वेश्चन। उसके बाद Yes. नाइट्रोजन और फास्फोरस का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंड राइट डाउन। phosphorus has phosphorus has phosphorus has empty 3d orbital. Phosphorus has empty 3d orbital. Due to which phosphorus has empty 3d orbital, due to which it can easily expand, due to which it can easily expand its octet and form different bonds. Due to which it can easily expand its octet and form different bonds. Nitrogen does not have empty d orbitals. And form Nitrogen does not have empty d orbitals. Nitrogen does not have empty d orbitals. Thus, nitrogen does not form pentavalent compounds, but phosphorus can. मिटा दें? Can I erase this? Connected? Yes. Yes. Oh. Yes. Yes. ये word सुना है पहले? yes, Yes. What is the meaning of Catenation. catenation? खुद के साथ बॉन्ड बनाना. Very good. The ability to self कैटायन बनना. नहीं nonsense, cation बनना. Catenation does not mean cation बनना. Catenation is the ability to bond within itself. ठीक है? Catenation is the property by virtue of it an element can form self linkages like this. ये देखो catenation इसने बताया नहीं मेरे को, मैंने यहाँ पे S लिखा हुआ
कोई बात बहुत कम। देन हायर एलिमेंट्स में बहुत ना के बराबर होता है। नाइट्रोजन हाँ है, ठीक है। So catenation is a property by virtue of which these elements can bond, make bonds within itself. Now catenation is very high for those elements जिनका bond enthalpy बहुत high होता है, ठीक है, जो आपस में छोटे 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 bonds बना करके एक polymeric chain बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे bonds और high bond enthalpy कहाँ पाया जाता है? ऊपर वाले elements के अंदर। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे क्या होता है बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होने लगता है और साइज इंक्रीज होने लगता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम होगा। सो मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज फाउंड इन कार्बन, ठीक है। फास्फोरस में है, सिलिकॉन में, नाइट्रोजन एंड बाकी इट गोज ऑन फेडिंग अवे, ठीक है। तो बट व्हेन आई टॉक अबाउट कैटेनेशन स्पेसिफिकली, इट्स गोइंग टू बी गोइंग टू फोकस ऑन कार्बन, और ये तो अपन सबको पहले से पता है 10 स्टैंडर्ड से, राइट? Yes. So because of catenation, there is one more property which is seen. What is that? Allotropy. Allotropy, beta. Have you Yes. heard of this? Yes. Yeah. Yes. What is the meaning of allotropy? सर एक एलिमेंट दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Very good, very good. One element existing in different physical forms. Simple. यस। Carbon. Diamond भी कार्बन है, डायमंड, ग्राफाइट भी Graphite कार्बन है, कार्बन है, ग्राफीन भी कार्बन है, गोल्ड भी। फलरीन भी कार्बन है, सब कार्बन के अलग अलग Coke. रूप। सिंपल। फॉस्फोरस हो गया, व्हाइट फॉस्फोरस एंड येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस एंड येलो फॉस्फोरस, ऐसा होता है। देन यू हैव डिफरेंट allotropic forms of arsenic, then you have tin, इन सब के अलग अलग allotropic forms पाए जाते हैं नेचर में। Okay, now when I discuss allotropy, the best example to discuss allotropy is Carbon. कार्बन का सबसे मस्त वाला allotropic form कौन सा होता है? डायमंड। डायमंड। इसके अंदर कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो शेप क्या होगा बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप होता है। टेट्राहेड्रल शेप होगा इसका। ये देखो, वन कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स वाया नेटवर्क, लाइक दिस। ऐसा मस्त नेटवर्क बना रहता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस नोन टू ह्यूमन, ये पता है तुम लोग को? यस। Yes. Yes. ठीक है, इट इज अ वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड कोवैलेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ क्रिस्टलाइन मैनर वेयर द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये स्ट्रक्चर आप आगे बढ़ता चला जाएगा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द बॉन्ड लेंथ इसका कैसा होना है बेटा? बॉन्ड डिस्टेंस कैसा होगा कार्बन टू कार्बन? ज्यादा होगा, कम होगा? बहुत कम कम। होगा। या कम होगा। इट इज 154 पिकोमीटर्स। ए बेटा, व्हाट इज पिको? 10 raised to -12 -12 meters. -12. Yes, correct. And its melting point or its boiling point is 3930 डिग्री सेल्सियस। 3930 डिग्री सेल्सियस जब आप डायमंड को टेम्परेचर दोगे तब जाकर के वो पिघलेगा। That's a very high temperature, बेटा, ठीक है। So strong substance used for glass cutting, jewelry making, blah 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 blah, ये सब बहुत costly होता है। Then purity पे डिपेंड करता है, crystalline structure होता है, कार्बन एटम इज sp3 hybridized and all कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है इसके, ठीक है। अच्छा, कार्बन का ही दूसरा एक फॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेफाइट। सेम कार्बन एटम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो कौन सा ज्योमेट्री होगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ये चैप्टर हो गया लगता है सब लोग? नो। No. अच्छा सर बेसिक और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक दिखाया था। अच्छा, इसमें ना लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा? लेयर्ड Layered स्ट्रक्चर होता है।
नाउ सी दिस 6 हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। ये एक लेयर हो गया, इसके नीचे दूसरा लेयर है, ठीक है। और नीचे लेयर्स रहेंगे इस तरह से। सो अभी क्या होता है, हर एक कार्बन के पास ना एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और उसके अंदर p इलेक्ट्रॉन है। वो जो p इलेक्ट्रॉन है वो थ्रू आउट द लेयर ये है, क्या बोलते हैं, delocalized है। तो दिस is that is why graphite is a good conductor. Diamond is not a good conductor of electricity. Why? Because यहाँ पे sp3 hybridization है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आर प्रॉपर इन प्लेस एंड पेयर। यहाँ पे there is a unhybridized p orbital जिसका p इलेक्ट्रॉन is delocalized over the structure। ऐसे लेयर्स फॉर्म में ये रहता है ग्राफाइट, ठीक है, लेयर्ड फॉर्म में रहता है। दो लेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 335 पिकोमीटर्स, 335 पिकोमीटर्स, और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ होगा 141.5 पिकोमीटर्स, 141.5 पिकोमीटर्स। इस तरीके का लेयर रहेगा। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहाँ पे होगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको इसके लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स की जगह पे यूज करते हैं। रिमेंबर, यस इलेक्ट्रोड सुना है, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज करते हैं, और यस क्योंकि ये कंडक्टिंग रहते हैं। सर इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोल रहे हो बेटा? बॉइलिंग इसका पॉइंट बॉइलिंग क्या पॉइंट है? इसके कंपैरिजन में बहुत कम रहता है। इफ टू बी स्पेसिफिक वैल्यू आई डोंट हैव इट, समथिंग कंपाउंड वैल्यू एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव इट। मैं पता करके आपको बता। यस सर। अच्छा, अभी फलरीन्स आर नथिंग बट 60, 82, 70 ऐसा कार्बन एटम्स का, इट्स जस्ट अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ना कार्बन 60 इज कॉल्ड एज द बकमिंस्टर फलरीन, जिसमें क्या होता है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बकी बॉल भी बोलते हैं इसको, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ फुटबॉल। ये आपने शायद स्कूल में भी देखा होगा। Yes. Very bad at drawings. There's a layer of pentagonal and hexagonal carbon atoms arranged like this, and it appears like a ball structure. Okay, I don't know what I'm doing, but I'm trying to draw something. So इस तरीके का fullerene रहता है। They are just groups of carbon atoms arranged in covalent bonds. Again, sp2 sp hybridized carbon atoms over there. Batches of hexagons and pentagons arranged in a closed circular manner. Then यहाँ पे approximate distance 143.5 and 138 ऐसा होता है picometers. Carbon carbon bond I'm talking about. Okay, they are having nice covalent bonds. They react with potassium and other metals to form superconductors. Now, what is a superconductor? Superconductor is a conductor which will conduct electricity at very low temperatures also. मतलब माइनस नेगेटिव टेम्परेचर में भी ना ये कंडक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल है K3C60, so Buckminster fullerene reacts with potassium to form K360, which is a superconductor. What is a superconductor? An element or a compound which conducts at very low temperature. Very low temperature पे क्या होता है, वाइब्रेशन कम हो जाता है ना, मूवमेंट कम हो जाता है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस टाइम पे कंडक्टिविटी इफेक्ट होता है। बट सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर एबल टू कंडक्ट बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। ये बेटा यस Yes. Yes. अच्छा, देन वी हैव कार्बन नैनोट्यूब्स। अभी नैनो केमिस्ट्री करके आपको 12th में है, ठीक है, जिसमें ना एक नैनो स्केल होता है। नैनो स्केल मतलब एनी वन डायमेंशन इज
इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। जब कोई भी वन डायमेंशन, डायमेंशन की मतलब क्या बात हो रही है, लेंथ ब्रेथ या हाइट, किसी भी सब्सटेंस का लेंथ ब्रेथ या हाइट एक नैनोमीटर का स्केल में लाई करेगा तो हम लोग उसको नैनो मटेरियल बोल सकते हैं। क्वांटम डॉट्स होते हैं, क्वांटम ट्यूब्स होते हैं, शीट्स होते हैं। तो नैनो मटेरियल अलग अलग टाइप का होता है बेटा, अलग अलग डायमेंशन से होता है, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2, 3, डिपेंडिंग की उसका कौन सा डायमेंशन नैनो स्केल में है। नैनो ट्यूब का लेंथ नैनो स्केल में नहीं रहता है, वो अच्छा खासा लंबा रहता है, बट उसका विड्थ और उसका हाइट नैनो स्केल में रहता है, तो बहुत ये रहता है। तो अगेन इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स लाइक दिस इन अ ट्यूबुलर मैनर, इस तरह। तो कार्बन नैनो ट्यूब ये कंडक्टर वगैरह में क्या बोलते हैं, सर्किट्स वगैरह में यूज करते हैं यहाँ पे। इस तरीके से ग्राफाइट का ना अगर अपन एक लेयर निकालेंगे तो पता क्या बन जाता है। तुम लोग को ये सब पता है कि मैं पहली बार बता। सर नैनो टिप नहीं पता था। नैनो ट्यूब्स नहीं पता था, नैनो टेक्नोलॉजी तो पता है ना तुम लोग को। नो नो नैनो No, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पता तुम लोग को। नो नहीं, कार पता है। कार पता है नैनो हाँ। पैक। सी नैनो ट्यूब्स इज लाइक डायमेंशन बोलते हैं ना वो, देखो जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, ये 3D ऑब्जेक्ट बनाया काइंड ऑफ। तो इसका लेंथ है, इसका हाइट है और इसका विड्थ है, ठीक है। तो अब ये तीनों स्केल अगर नैनोमीटर में रहेगा तो दिस इज द नैनो मटेरियल। अगर इनमें से कोई एक स्केल भी नैनोमीटर में रहेगा तो इट इज अ नैनो मटेरियल, ठीक है। तो नैनो ट्यूब में क्या होता है, इसका लेंथ तो अच्छा खासा लंबा रहता है, बट इसका विड्थ और इसका हाइट, इसका जो ये रहता है रेडियस, वो बहुत नैनो स्केल में रहता है, जिसको हम लोग सर्किट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग एंड वैसा। सो कार्बन नैनो ट्यूब्स वी टॉकिंग अबाउट। ग्राफीन इज व्हाट, ग्राफाइट का ही लेयर्ड पार्ट, मतलब इसमें लेयर के फॉर्म में रहता है, स्लिपरी रहता है। यहाँ पे एक लेयर निकाल करके शीट की तरह यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्राफीन हो जाएगा। ग्राफाइट एंड ग्राफीन आर सेम, इट्स जस्ट दैट एक लेयर है और सर दूसरा ग्राफेन एक बार ग्राफीन क्या बोल रहे हो बेटा। ग्राफीन एक बार ग्राफीन इज आइसोलेटेड लेयर ऑफ ग्राफाइट, ऑफ ग्राफाइट। देख बेटा, ग्राफाइट कैसा है, कार्बन का लेयर, कार्बन का लेयर, कार्बन का लेयर, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसा रहता है ग्राफाइट। अभी इस एक लेयर को मैंने साइड में करके अलग कर दिया, इस लेयर को मैंने अलग निकाल दिया, इस लेयर को मैंने अलग निकाल दिया, तो ये सिंगल शीट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ग्राफीन हो जाएगा। ये Yes. इट इज अ 2 डायमेंशनल शीट जिसमें लेंथ और विड्थ रहेगा, हाइट नहीं रहेगा, बिकॉज वो बहुत पतला रहता है ना इसलिए। तो अगेन उसको हम लोग सर्किट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। So these are some of the forms of carbon, allotropic forms of carbon. ठीक है, ये लिखेंगे बेटा हम लोग, नहीं? Yes. Yes. यस Done? ओके बेटा, बाय द वे ये पोर्शन में नहीं है, मतलब ऐसा अभी ये बोलूंगा तो पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैं बोलता नहीं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन नहीं है, बट पढ़ लो यार, काम आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो केमिस्ट्री में अगर कार्बन का डन, कैन आई इरेज दिस? Yes. यस। नाउ जैसे कार्बन का होता है ना बेटा, काय नाही नाही काय झालं? जैसे कार्बन का हमने देखा ना एलोट्रोपिक फॉर्म्स अलग अलग, वैसा ही इसका भी होता है फॉस्फोरस का। इट इज व्हाइट और येलो एंड रेड फॉस्फोरस, व्हाइट या फिर येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। इसकी बात करें तो दिस इज लाइक दिस टेट्राहेड्रल, इस तरीके का मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरीके का मॉलिक्यूल है जहां पे हर एक एंगल इज पिरामिड स्ट्रक्चर 60 डिग्री। ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। एंड द पी 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 बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। इट इज पॉइजनस, हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल स्ट्रक्चर रहता है। अब इसी को, ये व्हाइट फॉस्फोरस को अगर कंटिन्यूअसली हीट करो तो ये पॉलीमराइज होकर के रेड फॉस्फोरस बना देता है इस तरीके। then that same structure then this same structure becomes non-poisonous and stable, non-poisonous and stable हो जाता है। सर ये कैटलिस्ट में यूज होता है ना रेड फॉस्फोरस? क्या बोलो बेटा? कैटलिस्ट में, किसमें यूज होता है? रिएक्शन में यूज होता है ना कैटलिस्ट रेड फॉस्फोरस? नहीं, I'm talking about the element. I'm talking about the element phosphorus. हाँ, definitely yes. Phosphorus can be used as a catalyst also in many reactions, but not the white or the yellow one. I'm talking about the red one. Matchbox पता होगा तुम लोगों को? Matchbox Yes. हाँ Yes. यस, फॉस्फोरस रहते हैं उसके ऊपर। हाँ, phosphorus का थोड़ा कंपाउंड रहता है उसके अंदर because it is flammable, वो ignite भी होता है। यस और ये जो होता है ना व्हाइट या येलो फॉस्फोरस, वो ल्यूमिनेसेंस भी है, केमिकल ल्यूमिनेसेंस दिखाता है, वो डार्क में ग्लो करता है, फ्लोरोसेंट दिखाता है, अंधेरे में वो ग्लो भी करता है। माइंस वगैरह में जहाँ पे ये पाया जाता है ना, वहां पे ये ग्लो वगैरह भी करता है ऐसा। सर फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस बॉन्ड लेंथ कितने है? फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस बॉन्ड में 34 मॉलिक्यूल में और I'll have to check. ये भी चेक करता हूँ। और दूसरा जो आपने पूछा था, कौन सा पूछा था मेरे को? Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ग्राफाइट, ऑफ ग्राफाइट। ग्रेफाइट। हाँ ठीक है, ये दो चीजें चेक कर, ये इतना लिख लो। फिर अपन डन। नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, एक कंपाउंड्स पढ़ना शुरू करेंगे। इतना लिख लो। Done?
डन गाइस? Yes. Yes, sir. Yes. यस सर. और ठीक है. तो अपन नेक्स्ट क्लास से व्हाट विल स्टार्ट विद द कंपाउंड्स ऑफ दीस एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स उनका स्ट्रक्चर्स करेंगे. ठीक है. Yes. Yes. बाय. Bye, sir. Adios. अच्छा. Bye.